Next, now we have to discuss normal distribution. It is a continuous probability distribution. Normal distribution. It is a continuous probability distribution. It means in this case probability function is named as probability density function. Like in binomial distribution, Poisson distribution, we have probability mass function. Binomial and Poisson are discrete probability distributions, but normal distribution is a continuous probability distribution. It can be, again, it can be derived from the binomial distribution. In the limiting case, like Poisson distribution, वो भी binomial से बनी थी, ये भी binomial से बनेगी. In a limiting case, when n number of trials approaches to infinity, very large, and p probability of success close to half, approaches to 1 by 2, then binomial distribution can be approximated by normal distribution. Binomial distribution is a discrete probability distribution, but if n is very large, approaches to infinity, number of trials very large, it means binomial distribution changes to normal distribution, which is continuous. A large value of n, we say it as continuous distribution. The probability density function, the probability density function
of normal distribution is fx is equal to 1 upon sigma 2 pi under root e raised to power minus half into x minus mu by sigma whole square. X varies from minus infinity to plus infinity. Values of x, maybe take any values in minus infinity to plus infinity. Mu and sigma, mu basically mean, sigma is standard deviation. Mu and sigma are called the parameters of the distribution. Mu means mean, sigma is standard deviation. And x is called the normal variate. The probability density function of normal distribution is, like in case of binomial distribution, Poisson distribution, हमने probability mass function लिखा, उसको px equal to r लिखते थे. Binomial distribution and Poisson distributions are discrete distributions, and normal distribution is a continuous distribution. So probability density function से प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे. एफ एक्स से डिनोट किया. एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1/सिग्मा इंटू 2 पाई अंडर रूट इंटू ई रेज टू पावर -1/2 and x minus mu by sigma whole square. And random variable x may take values in minus infinity to plus infinity interval. If a variate random variable, or if a variate or variable x has the normal distribution
with mean mu and standard deviation sigma, we denote it as x colon n in bracket mu comma sigma square. This is the short form to represent, to write that x has normal distribution with mean mu and variance sigma square or standard deviation sigma. This is the short form or the symbol to write the normal distribution. We denote normal distribution in this way. Normal curve. In case of continuous probability distribution, we may plot the curve of the probabilities. Normal curve. The graph of normal distribution is called the normal curve. कर्टोसिस में हमने कर्व्स की टाइप्स की थी, कर्व्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। कर्टोसिस जब किया था स्क्यूनेस के बाद, पीक्डनेस ऑफ द कर्व, उसको कर्टोसिस कहते थे। नॉर्मल कर्व क्या है? नॉट टू मच फ्लैट, नॉट टू मच पीक, ना तो ज्यादा पीक होएगी ना फ्लैट होएगी, नॉर्मल कर्व आएगी। स्क्यूनेस इसका जीरो आएगा। स्क्यूनेस क्या था? लैक ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्रिक कर्व होएगी नॉर्मल जो है। इट इज बेल शेप्ड, एंड सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। It is bell shaped and symmetrical about the mean. नॉर्मल कर्व कैसे प्लॉट करें? Say this is x-axis, perpendicular to it y-axis, and along y-axis use y as fx, y is equal to fx. Fx is the probability density function of the curve of the normal distribution. X-axis, say this is the point mu, mean. At this point x is equal to mu और x बार भी यूज कर सकते हैं। तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। सिमेट्रिक,
सिमेट्री कैसे बनाना, उसके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सेम शेप आएगी। ऐसे सिमेट्री का कर्व। तो दिस कर्व विल नेवर टच एक्स एक्सिस, इट विल टच द एक्स एक्सिस एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो होता नहीं है, तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करवाना। एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे ही कर्व आएगी, लेकिन उसको टच नहीं करेगी। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द कर्व वो कब आएगी, जब इसका मॉड होगा। इन केस ऑफ नॉर्मल कर्व, मीन मॉड एंड मीडियन कोइंसाइड। इसका मॉड भी यही है, मीडियन भी इसी पर ही आएगा। अगर कर्व की स्क्यूनेस जीरो है, इट मींस मीन मॉड मीडियन कोइंसाइड। तो नॉर्मल कर्व के केस में मीन मॉड मीडियन कोइंसाइड एक पॉइंट पर ही आएगा, इक्वल आएगा। This is normal curve. The graph of normal distribution is called normal curve. It is bell shaped and symmetrical about the mean. It is further, it is unimodal. It is a unimodal, and the mod, unimodal की उसका mod single है, and the mod of the distribution, mod of the normal distribution coincide with its mean and median. The line x is equal to mu, mu is constant, mean, divides the curve sorry, the line x is equal to mu divides the area under the curve, area under the curve into two equal parts.
तो टोटल एरिया अंडर द कर्व इज कितना आएगा, कोई आइडिया? टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटेग्रल लिमिट माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। टोटल एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आपने चैप्टर किया होगा, इंटेग्रल कैलकुलस में 12th में भी करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे आएगा? अगर आप इंटीग्रेशन करें एफ एक्स फ्रॉम लिमिट माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, तो हमारे पास आएगा एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स अबव एक्स एक्सिस, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल इज, कितनी वैल्यू आएगी इस इंटेग्रल की? इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इंटेग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितना होगा? 1। इन केस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में समेशन 1 था, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इंटेग्रल 1 होगा। एंड प्रोबेबिलिटी x lies between से x1 to x2 कैसे फाइंड होगा? इज इक्वल टू इंटेग्रल लिमिट x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स। अगर आप इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लें तो प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन lines x equal to x1 and x is equal to x2 gives the probability that x lies between x1 and x2. If x1 and x2 are any 2 points on x-axis, मान लीजिए कि ये पॉइंट है x1, सेकेंड पॉइंट इज से x2, so probability that random variable x lies between x1 and x2 is area under the curve between limits x1 to between the lines x1 and x2, x equal to x1 and x is equal to x2, तो ये लाइंस होगी। so this area gives the probability that x lies between x1 and x2। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? विद दिस इंटेग्रल। एंड इंटेग्रल लिमिट माइनस इनफिनिटी टू म्यू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल विथ लिमिट्स म्यू टू प्लस इनफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एंड वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू, बताएं कितनी वैल्यू होगी? कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। मीन एक्स इज इक्वल टू म्यू के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सेम एरिया है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1।
माइनस इन्फिनिटी टू मीन एंड मीन टू इन्फिनिटी, ये क्या हाफ हाफ पोर्शन है, तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/2. 1/2.5। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म of normal distribution, standard form of normal distribution. If x is a normal random variable with mean mu and standard deviation sigma, then z is equal to x minus mu by sigma is called the standard normal variate, standard normal random variable. Z follows normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. Z follows normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. If X is a normal variate with mean mu and standard deviation sigma, and if you substitute Z is equal to X minus mu by sigma, then this new variable is called standard normal random variable, and this variable follows normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. The probability density function for normal distribution in standard form is the probability density function PDF for the normal distribution
in standard form is given by fz is equal to 1 upon 2 pi under root into e raised to power into e raised to power minus z square by 2. This is the probability density function of standard normal distribution. Z varies from minus infinity to plus infinity. No, normal curve in standard form is symmetric about z equal to 0. See here z axis point, z equal to 0 is mean. In standard form mean is 0. बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट थी. जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे x माइनस म्यू बाय सिग्मा को हम पुट करेंगे. तो जब हम पुट करते हैं वहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी. नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होएगी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. वो z इक्वल टू 0 के सिमेट्रिक हो जाएगी. हमने उसका ओरिजिन शिफ्ट किया, ये बोल सकते हैं. एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू म्यू. x की फॉर्म में ओरिजिन डिफरेंट था, लेकिन जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन की उसको पुट कर दिया, z में चेंज किया, तो ओरिजिन के सिमेट्रिक हो जाएगी. वो ओरिजिन की जो लाइन बनेगी z इक्वल टू 0, तो उससे उसके सिमेट्रिक हो जाएगी कर्व. तो हमने उसको शिफ्ट किया. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जिस शिफ्ट करने का आइडिया कहां से मिला? इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से. जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से ही होगा. इंटेग्रल लिमिट माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एफ जेड डी जेड 1 ही होगा. टोटल एरिया अंडर द कर्व तो 1 ही है. इंटेग्रल माइनस इनफिनिटी टू 0, जैसे मैंने म्यू लिखा था अब 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.5. इंटेग्रल लिमिट 0 टू इनफिनिटी, again 0.5. total area under the curve is 1. 50% on right side, 50% on left side. Point 5. Point 5. To find probability, z lies between z1 to z2. It means
इंटेग्रल लिमिट z1 to z2 fz dz. Area under the curve between the lines z equal to z1 and z is equal to z2 gives the probability. सेम उसी तरह जैसे x की फॉर्म में लिखा था. Say this is the point z1, here z2. तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे? एरिया अंडर द कर्व, दिस वन. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है वो हम आपको बताते हैं. मैं आपको बताने जा रहा हूं. नॉर्मल टेबल प्रोबेबिलिटी z lies between z0 to z1. It means integral from limit 0 to z1 fz dz. From normal tables. Normal table, normal distribution table, normal distribution table is used to write this integral. The value of the integral. इंटेग्रल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी सॉल्व किया मिलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लाइक नोट कर लिया जी आपने. प्रोबेबिलिटी z lies between 0 to 1. If we have to write this probability, कैसे लिखेंगे? तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल we have इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे टेबल होगा. We have column horizontal and vertical lines like this. The value of z in vertically we have the value of z starting from 0 and up to 3.1, and then horizontally we have 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05. इसी तरह लिख दिया 0.09. एंड जहां पर इन्होंने वैल्यूज लिखी टेबल में, जो प्रोबेबिलिटीज है एरियाज का जो आंसर है वो है इंटेग्रल का. इसको यूज कैसे करें? हाउ टू यूज दिस? नो इफ z इज इक्वल टू
से z इज इक्वल टू, मान लीजिए कि z की वैल्यू है 1, इट मींस फर्स्टली वी हैव टू चेक, ये जो वर्टिकल लाइन कॉलन है इसमें चेक करेंगे कि 1 कब आएगा। हियर z इज इक्वल टू 1 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू 1 हमारे पास फर्दर कितने वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है। हॉरिजॉन्टली चेक करें, वी हैव 10 वैल्यूज। 1 का मीनिंग क्या है, 1.00। इट मींस ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी जैसे लिखा था, प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 to 1, तो आंसर आएगा 0.3413। क्लियर? स्क्रीन विजिबल है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स के तरफ से? यस सर, विजिबल। बोले कुछ पता लगे ना भी आप देख रहे हैं। सर बैक पेज शो कर देंगे। इसी ये अपने ओपन बोर्ड का है और दूसरा सर ओपन बोर्ड का ही। थैंक यू सर। प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 to 1.02, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फ्रॉम नॉर्मल टेबल। अब मैंने क्या लिखा, 1 z की वैल्यू क्या लिखी, 1.02, 1.02। अब फर्स्टली कॉलम में चेक करें 1.0। ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज है ये डेसिमल रिप्रेजेंट करेगी। इट मींस मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस में z की अगर वैल्यू हो तो आंसर करेक्ट आएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने करेक्ट आंसर दिया, इसके आगे हम उसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर 1.02 है तो पहले कॉलम में चेक करेंगे 1.0 एंड फिर रो में चेक करेंगे कि 0.02 कहां पर है। इट मींस आंसर आएगा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.3461। तो इसका आंसर आएगा 0.3461। अगर ऐसे लिखना हो, प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 to से 2 पॉइंट और 1 पॉइंट देखते हैं पहले तो, चलो 1.15, तो कैसे लिखेंगे, 1.15 बताएं कैसे लिखें, कोई आइडिया दे। वन 1.15 आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं कि जो कॉलम्स में वैल्यूज लिखी है z की, अगर आप उस वैल्यूज में हॉरिजेंटल वैल्यूज ऐड करें तो z का जो वैल्यू आएगा वहां से आंसर आ जाएगा। जैसे हॉरिजेंटल आप देखें कि हमारे पास z 1.1 कॉलम से आ जाएगा, 1.1, ये देखिए 1.1 है। हॉरिजेंटल में क्या लिखा, 0.00, 0.01। अगर आप इसमें 0.05 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 1.15। इट मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर जे आएगा। वन 1.1 चेक कर लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग 0.05
चेक करें कि 0.05 कॉलम में क्या वैल्यूज हैं, वो आंसर होगा 0.3749। तो 0.3749 ऐसे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। इसके आगे और भी टेबल्स है लेकिन ये अभी यूज नहीं होंगे, हम अभी ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज करेंगे। तो ये ग्रुप आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसको कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट का लेक्चर में भी चलो कंटिन्यू करेंगे, हाउ टू यूज द टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रोबेबिलिटी z minus infinity to infinity is 1, what probability z lies between -3 to +3, approximately 1। जो नॉर्मल कर्व है वो कभी भी z एक्सिस को टच नहीं करेगी, लेकिन अगर -3 और 3 के बिटवीन एरिया चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। इसके आगे जो कंट्रीब्यूशन होगी बहुत ही स्मॉल होगी, ऑलमोस्ट निल होगी। इसी रीजन से जो नॉर्मल टेबल है उसमें उन्होंने वैल्यूज जो है उन्होंने वैल्यू वन साइड है ये टेबल, तो उन्होंने वैल्यू अप टू 3 ही दी है, 3 से आगे नॉर्मल टेबल नहीं दिया। व्हेन z इज इक्वल टू 3.0 और 3.1 उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर चेक करें क्या है, 0.4990। कितना चाहिए था, 0.5 चाहिए था। राइट साइड में एरिया कितना आएगा, 0.5। दिस इज वेरी क्लोज टू 0.5। तो इसके आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो मीनिंगलेस है। अगर z की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो तो हम उसको 3.1 और 3 वाली ही काउंट करेंगे, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, वो इतना ही लिख दे तो सफिशिएंट है। 0.4999, 0.4993, तो ये 0.5 ही है। क्लियर? इसके आगे फिर टेबल लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने 0.3 z इक्वल टू 3.1 वही इस टेबल का एंड है, उसके आगे टेबल नहीं बनाया। तो -3 to 3 अगर आप एरिया चेक करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा। अदरवाइज वैसे तो ये टच नहीं करेगी कर्व z एक्सिस को।